It's wonderful to be together with friends and at this transformative moment in the world. And we are at a transformative moment. Prime Minister Kishida, I want to commend you for the extraordinary leadership that over the past few months that you've shown and for the gracious way in which you've hosted all of us. And Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on a plane, you were sworn in, got in a plane, and if you fall asleep while you're here, it's okay. Because I don't know how you're doing it, but it's really quite extraordinary. Just getting off the campaign trail as well. Congratulations on your election. As I told you when you won, I called you that we greatly appreciate your commitment of being here so soon after taking office. Quad leaders met for the first time just over 1 year ago. It seems longer, but today our partnership is central to achieving our goals and critical for the foundation of our continuing cooperation, in my view. We already accomplished a great deal, as was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security, more to do, to state the obvious, partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship Program, which I think is going to make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian और टोक्यो से हमारे सहयोगी माधव इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। माधव, सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्य देशों को मित्र देश बताया। कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की गई है कि देखिए घनिष्ठ मित्रता है और आगे भी सम्मेलन में जब भी स्टेप्स जो लिए जाएंगे वो न सिर्फ दुनिया को प्रभावित करेंगे बल्कि चीन को भी एक मैसेज देने की कोशिश की अमेरिका अब भारत के साथ खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने, चारों देशों को मित्र देश बिल्कुल बोला यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़ का भी स्वागत करते हुए कहा कि क्वाड के लिए जो कमिटमेंट है उनका साफ झलकता है, क्योंकि चुनाव के केवल 48 घंटे बाद वो ऑलरेडी जापान आ चुके हैं और इस अहम सम्मेलन में भाग भी ले रहे हैं। तो चारों लीडर्स के ओपनिंग रिमार्क्स में इन्होंने क्वाड की तो बात करी ही, और साथ ही साथ जो अपने चारों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसको और बढ़ाने की बात की गई है। इंडो पैसिफिक ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इस पूरे क्वाड सम्मेलन में, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने भी कहा है कि बार बार चीन के नेता उनसे सवाल ये पूछते हैं और सवाल उठाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक में क्यों इंटरेस्टेड है, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने साफ तौर पे कहा है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का एक भाग, यूनाइटेड स्टेट्स का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो पूरा पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, और इन इंडो पैसिफिक देशों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व में भी संबंध रह चुके हैं, और वो चाहता है कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक में उनका इन्फ्लुएंस जारी रहे। ये साफ तौर पर इंडिकेशन है चाइना के लिए, जो बार बार अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है एशिया और इस इंडो पैसिफिक रीजन को। इसमें चाइना ने बार बार कहा है कि यूएस हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साफ तौर पे इस स्टेटमेंट में यूएस प्रेसिडेंट ने ये जाहिर किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जहाँ तक बात है, यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी इंडो पैसिफिक पे फोकस्ड रहेगी और यहाँ के देशों पे और इस एरिया पे फोकस्ड रहेगी। ऑलरेडी हमने कल देखा था कि 4 क्वाड देशों के
अलावा 8 अन्य देशों के साथ एक रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप की घोषणा भी की गई है। और इस रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत इन देशों के बीच में ट्रेड को लेकर काफ़ी सारे बैरियर्स खुलेंगे, काफ़ी सारी कोऑपरेशन होगी। एग्जैक्ट कॉन्टूर्स इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन साफ तौर पे इन 12 देशों के बीच में और अच्छे और घनिष्ठ संबंध बनाने की बात की जा रही है। और इससे चाइना कहीं ना कहीं बौखला गया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की भी रिस्पॉन्स हमने कल देखी है, जो पूरी तरह से उसने कहा है कि ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप फेल होगी, क्योंकि चाइना परसीव करती है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये किसी न किसी तरह थ्रेटन कर सकती है आने वाले दिनों में। चाइना मुख्य तौर पर फोकस रहेगा न सिर्फ सिक्योरिटी और मिलिट्री के तौर पे जो कोऑपरेशन और चर्चाएं होंगी उसको। बिल्कुल माधव। तो माधव, हमारे सहयोगी टोक्यो से इस वक्त हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और पूरी दुनिया ये देख रही है, आज इस मीटिंग पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि 4 महाशक्ति का ये सम्मेलन हो रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर, जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है इस बैठक में। लोकतंत्र बचाने के लिए आपकी कोशिश सराहनीय है, और साथ ही जिस खूबसूरती के साथ कोविड काल में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत में शानदार काम किया, बल्कि बाकी देशों की भी जो मदद की है, उससे बताता है कि हम मेडिकल क्षेत्र में भी कितने ज्यादा मजबूत और आगे बढ़ चुके हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए आपकी कोशिश सराहनीय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का उपयोग किया है जो बाइडेन ने। पीएम मोदी से फिर मिलना सुखद अनुभव, जो बाइडेन, ये मुलाकात देखिए रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार हो रही है। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, ये उनकी कोशिश जो है वो सराहनीय है। आज की लड़ाई लोकतंत्र बनाम निरंकुशता की लड़ाई है, और उस लड़ाई में अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो माधव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं टोक्यो से। माधव, द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है जो बाइडेन से, और न सिर्फ जो बाइडेन से बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी इस बैठक को लेकर के क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। ये 2 बायलैटरल मीटिंग्स और 3 बायलैटरल मीटिंग्स आज होंगी। जो बाइडेन के साथ सबसे पहली मीटिंग होगी यूएस प्रेसिडेंट के साथ, वो क्वाड समिट के थोड़ी देर बाद ही होगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं एंटनी एल्बनीज के साथ दोपहर को मीटिंग होगी। शाम को जापान के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी, और उसी के बाद डिनर होस्ट किया जाएगा जापान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपने प्लेन के द्वारा वापस भारत जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है, और मैं ये पढ़ना चाहूंगा जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्वाड समिट पे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन इन पर्सन, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस कमिटमेंट फॉर मेकिंग श्योर डेमोक्रेसीज डिलीवर, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज अबाउट डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसीज। तो साफ तौर पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि भारत की डेमोक्रेसी और भारत और अन्य डेमोक्रेसीज डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसीज और ऑटोक्रेसीज की तुलना की जाए तो उसमें बहुत अंतर होता है। और साफ तौर पर भारत को एक डेमोक्रेसी जो डिलीवर कर रही है, ये कहना प्रेसिडेंट जो बाइडेन का काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देखा जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे बार बार विपक्षी पार्टियां इस सरकार को और प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश करती है इस पूरे डेमोक्रेसी के मुद्दे पर। ये कहना कि डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है भारत में, ये उनका आरोप रहता है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के ये जो शब्द हैं बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं राजनीतिक रूप में भी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल चर्चा आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी अहम स्टेटमेंट के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो रशिया के बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति, वो एक कल्चर को एक्सटिंग्विश करने की बात कर रहे हैं। ये ये केवल यूरोप का मुद्दा नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया का मुद्दा है। ग्लोबल फूड क्राइसिस की स्थिति और ख़राब हो सकती है अगर रशिया यूक्रेन को अपने अनाज को एक्सपोर्ट करने से अगर रोकती रही। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक रशिया इस तरह जारी रखेगी, यूएस पार्टनर्स के साथ काम करती रहेगी। तो काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये तारीफ है, इसकी हम डोमेस्टिक इम्पैक्ट या डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस भी देख सकते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर।
देश के भीतर तो सियासत शुरू हो ही जाएगी माधव, लेकिन जिस तरीके से जो तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ऐसे वक्त में जब कहीं ना कहीं भारत जो है वो रूस के साथ अपने रिश्तों को लेकर स्ट्रांग तरीके से खड़ा नजर आ रहा है। आज डायलॉग्स भी होने हैं जो बाइडेन के साथ, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ ये तारीफ करना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कोशिश है वो सराहनीय है, और ऐसे में भारत जो है वो उस मजबूत स्थिति में होता है कि जो बाइडेन के सामने भी अपनी बातों को अड़िग तरीके से रखेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक क्वाड की हम बात करते हैं तो क्वाड में सबसे अहम बात यह है कि हम देख रहे हैं कि चारों देश किस तरह एक साथ काम कर रहे हैं। चाइना को लेकर काउंटर करने की ही बात नहीं है, लेकिन साथ में उनकी जो अपने इश्यूज़ हैं उस पर कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए। अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, चाहे क्लीन एनर्जी की बात की जाए, इन सब एरियाज़ पर भी कोऑपरेशन की बात होती है। तो बहुत ही अहम ये समिट देखा जा रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये चाइना को एक संदेश भी दिया जाता है कि चाइना अगर किसी भी एरिया पे अपनी एक्सपेंशनिज्म या मिलिट्री का गलत प्रयोग करने की कोशिश करती है तो उसको काउंटर किया जाएगा, उस पर लगाम लगाया जाएगा, उसको रोका जाएगा। ये मैसेज बहुत साफ तौर पे, क्योंकि चाइना के बिल्कुल नज़दीक जापान की राजधानी टोक्यो में ये क्वाड समिट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संदेश चाइना को जा रहा है कि इस तरह की जो अरेंजमेंट है क्वाड की, इसको बहुत हल्के में ना ले, और ये बहुत सीरियस अरेंजमेंट है इन चारों देशों के बीच में। मिलिट्री अलायंस तो नहीं कहेंगे हम इसे, स्ट्रेटेजिक अलायंस तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इस वक्त जो चारों देश के बढ़ते करीबियां हैं और इस तरह की जो समिट्स जो बार बार हो रही है, सितंबर में पिछली इन पर्सन क्वाड मीटिंग हुई थी, मतलब फिजिकल जो मीटिंग हुई थी वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। इस वक्त ये क्वाड की मीटिंग यहाँ टोक्यो में हो रही है, और अगली क्वाड की इन पर्सन मीटिंग भी कुछ ही महीनों में एक्सपेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में इस क्वाड अरेंजमेंट को और इन चारों देश के आपस में जो एंगेजमेंट्स हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर और चर्चा भी की जा सकती है। तो काफ़ी अहम रूप में देखा जा रहा है इस पूरे क्वाड समिट का। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पे यहाँ पे जापान के प्रधानमंत्री के साथ ऑलरेडी बायलैटरल मीटिंग की थी मार्च में, और जापान के प्रधानमंत्री के साथ दो महीने में ये दूसरी इन पर्सन मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग के जो भी निर्णय थे उनको रिव्यू किया जाएगा कि उन पर आगे कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रगति हुई है, और आगे के जो डिसीजंस होंगे उन पर भी चर्चा आगे की बढ़ाई जा सकती है। तो ये देखना होगा कि इन बायलैटरल मीटिंग्स में से स्पेसिफिकली क्या निकल आता है। आज शाम को हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक फॉर्मल ब्रीफिंग होगी, जहां पर जो भी चर्चाएं हुई हैं इस दौरान उस पर और डिटेल और इंफॉर्मेशन सामने लाई जाए। तो पूरे देश की, दुनिया की नजर टिकी हुई है, और साथ ही इन चार महाशक्ति देशों के एक साथ होने से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से चीन को तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। माधव, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन